We can say that the principal source of occupation, it was agriculture in Indian economy. Greater dependence of agriculture as suggested by occupational structure on the eve of independence implied less ability of land per head of the farming population. Due to the heavy burden of population, there were 70% people who were engaged in the agriculture, and percentage of population dependent on agriculture it is much less in advanced country in the world. Our country in India, there are more of population that is depend upon the agriculture, and we compare it with the advanced country. For instance, for example, you can say in England and America 2%, and in Japan 12% of the population is engaged in agriculture, and in Germany it was 4%. This establishes backwardness of the Indian economy at the time of independence. Second is industry, insignificant source of occupation. On the eve of independence, 9% of the working population in India it was engaged in manufacturing sector, that is industry, mining, etc. And compared to USA, England and Japan, that was very low, and in further proves how backward the Indian economy was at the time of independence. Third is unbalanced growth. We can say growth is said to be balanced while our sector of the economies are equally developed. बैलेंस्ड मीन संतुलन, यानी कि यदि हमारे यहाँ 3 सेक्टर में हमने इकोनॉमी को बांटा है, अगर वो तीनों ही सेक्टर इक्वली ग्रोथ करेंगे तभी हमारी जो ग्रोथ है वो कहलाएगी बैलेंस्ड. लेकिन इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्योंकि 72% पॉपुलेशन हमारी पहले से ही एग्रीकल्चर में है और कंपेयर करें तो एग्रीकल्चर में सिर्फ 9% है, तो सेक्टर्स जो हमारे हैं इंडियन इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, वो तीनों ही सेक्टर हमारी इन्फेंट स्टेज में थे. एग्रीकल्चर के अंदर पॉपुलेशन बेस्ड है, अंगेज्ड है, लेकिन उसकी जो हमारी आउटपुट आनी चाहिए थी वो इतनी नहीं थी. उसका कुछ कारण था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एक परिवार के अंदर यदि 10 इन टर्म ऑफ ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी गेट ए डिसअपॉइंटिंग पिक्चर इन द इंडियन इकोनॉमी. Bulk of working population was engaged in agriculture sector along with the fact that agriculture was merely a means of subsistence. हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके अंदर जो खेती या जो भी फूड ग्रेन्स का हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ निर्वाह के लिए होता था. उसको हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं कह सकते थे, और इंडियन इकोनॉमी वाज स्टिल इन बैकवर्डनेस स्टेट एंड मास लेड देयर लाइफ इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. और गरीबी हमारे यहाँ एक हद तक थी, यानी कि लोगों के पास सिर्फ अपने खाने पीने और रहने लायक भी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ नहीं थी. एंड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इन इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैन टेक द ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी एंड सोशल चेंजेस, हाउसिंग, हेल्थ फैसिलिटीज़ विच सर्व ए फाउंडेशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो. द स्टेट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन: रेलवे, पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड रोड्स. वी कैन से दैट इवन रेलवे for the colonial exploitation by the British rulers, it was exploited, and ports, these were also developed by the Britishers to handle export of the raw material. Post and telegraph, these facilities were developed by the Britishers to increase the administrative efficiency of the Britishers. And you can say roads, these were also developed to facilitate the transportation of raw material from different parts of the country to the ports. In brief, you can say that railway, ports, post and telegraph and roads, these all facilities were developed by the Britishers in India for the exploitation of Indian resources to facilitate the Britishers. Briefly, some modest infrastructural changes in the economy during the British Raj is not denied. But the motive behind this change was not the growth and development of the Indian economy, it was the growth and development of the Britishers. What were the impact of railway in India? You should keep in mind one most important thing, that when there are some changes, when there are some facilities, when there are some principles, there is
merits as well as demerits also. That was same in the India regarding the railway infrastructure by the Britishers in India. Some were positive impact and some were negative impact. What was the positive impact? Railway facilitated by the Britishers for the expansion of domestic market. So export and import of the country, it showed a significant rise. Railway, commercialization of agriculture, good, which was on the subsistence level. The goods of the agriculture could be moved to distant places, implied a modest change in the outlook of the farmer, started farming as a business rather than as a subsistence. Railway enabled people to break the barrier of distance and undertake journeys so far places. रेलवे के बाद ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बारे में सोचने लगे, अदरवाइज जब तक रेलवे हमारे यहाँ नहीं था तब तक लोग एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में भी हिचकिचाते थे. फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री हेल्प्ड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फमाइंस. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट के अंदर किसी वजह से फसलें ख़राब हो जाती हैं, फेमाइंस अकाल पड़ जाता है, लेकिन दूसरे प्रदेश में बारिश अच्छी होने के कारण वहाँ नहीं है ऐसी सिचुएशन, तो इन फैसिलिटीज़ को, इन फूड ग्रेन्स को उस स्टेट में जहाँ पर फेमाइन की सिचुएशन थी, अकाल की स्थिति थी, ये रेलवे से उसको वहाँ पर ले जाया जा सकता था ताकि उस सिचुएशन को काबू किया जा सके. नेगेटिव इम्पैक्ट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन वाज द मेन इन द इंडियन इकोनॉमी. जो भी रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को पहुंचाना होता था वो इन रेलवे के द्वारा ही पहुंचाया जाने लगा. फिनिश्ड गुड्स कमिंग एज इम्पोर्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, बनी बनाई जो चीज़ें ब्रिटेन से आनी होती थी वही रेलवे उसके लिए हेल्पफुल हुआ. और स्प्रेड ऑफ रेलवे लेड टू द स्प्रेड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट. एंड these are the positive and the negative impact. Students, we have studied the positive and negative impact of the railway. There were also the positive and the negative impact of the British rule in India also. First is commercial outlook of the farmers. We have studied that Indian agriculture, it was the basic infrastructural change in the Indian economy. यू कैन से कि भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर था, कृषि जो था वो प्रमुख संसाधन था, प्रमुख खेती का ही हमारे यहाँ लोगों ने अपनाया हुआ था. तो जो ज़बरदस्ती खेती की जाने लगी, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन थी एग्रीकल्चर की, वो ब्रिटिश रूल एक्सपोज किया द सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट. दिस इज़ आल्सो लेड ए ग्रेजुअल चेंज इन द आउटलुक ऑफ फार्मर. जो किसान थे उनको ये समझ आने लगा कि खेती सिर्फ निर्वाह के लिए नहीं है, खेती का कमर्शियलाइजेशन किया जा सकता है. खेती के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान जो हमारा सरप्लस है उसको बेच सकते हैं. द फार्मर स्टार्टेड कंसिडरिंग द मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एज इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्शन डिसीजन. यानी कि वो अपने खेती उस प्रोडक्शन की ओर ले जाने लगे, उस तरह के उत्पादन की ओर जाने लगे जहाँ सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल पर ही खेती ना हो बल्कि उसका कमर्शियलाइजेशन, उसका व्यापारीकरण किया जा सके. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, रेलवे के इंक्रीज होने से, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से, रेलवे का डेवलपमेंट होने से, रोड ज़्यादा बनने से नए नए जो आर्थिक थे और जो सामाजिक नए नए अवसर थे उनका भी विकास होना शुरू हुआ. फेमाइंस, अकालों के ऊपर कंट्रोल होने लगा क्योंकि रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट द रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन टू द फेमाइन इफेक्टेड एरिया. मैंने अभी बताया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जहाँ पर फेमाइन की सिचुएशन थी और जहाँ पर नहीं थी वहाँ फूड ग्रेन उस फेमाइन अफेक्टेड एरिया में जाने लगा और भूखमरी से लोगों का मरना बंद होने लगा. मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम, यू हैव स्टडीड आल्सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम. दैट इज़ कॉल्ड सीसी इकोनॉमी आल्सो, कमोडिटी फॉर कमोडिटी. जहाँ पहले एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का चलन था उसका स्थान ले लिया मॉनिटरी सिस्टम ने. ग्रोथ ऑफ मॉनिटरी सिस्टम यानी कि पैसे के आगमन से, मुद्रा के आगमन से डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ. लोगों को काम के बदले में सिर्फ अनाज नहीं मिलने लगा बल्कि पैसे भी मिलने लगे. स्पेशलाइजेशन हुआ इससे और लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया. एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट ए लेजेसी
एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो आज हम सिस्टम देख रहे हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम है, आपके ब्लॉक लेवल है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है या फिर आपका स्टेट लेवल है, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, जिसको आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। दिस सर्व द रेडी रेफरेंस फॉर आवर पॉलिटिशियंस एंड द प्लानर्स। Students, it is the completion of the chapter first. You have to study about the PowerPoints and revision window first. After that, you have to write the questions of NCERT question with hints to answer. It has been given in this chapter, at the last of this chapter, on page number 27. Students, if you have note the question or the book also, you may mention it in this group. I will send you the questions and the hint for these questions also. And after that you have to write within 2 or 3 days. Okay, and you will submit your notebook on this group also. If there is any problem regarding any questions, because there is only the hint of these questions, you have to write with explanation of these answers in your notebook. Okay, and after that submit me. If there is any problem, you may ask to me frequent. Okay, thank you beta.